Hello friends, today we are going to study the subject signal and systems, and in signal and systems the most important topic is LTI systems. So first we are going to study what is LTI system, some basic definitions, and then what is linearity and what is time invariance, what are the properties of the LTI system, convolution integral and its uses. So first we should know what is an LTI system. LTI system stands for linear and time invariant system. So what is linear and what is time invariant system we are going to see in the next slide. So let us consider an input xt which is given to an LTI system. The output that we are getting yt through an LTI system can be calculated through a convolution integral. See, so Hs or h omega is known as the transfer function of an LTI system. This is an LTI system. This block represents an LTI system. तो उसका Hs and h ओमेगा उसका ट्रांसफर फंक्शन होता है Hs जैसे कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में निकालते हैं और h ओमेगा जो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म से निकालते हैं. ये दोनों फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, तो इसका इन्वर्स लाप्लास और इन्वर्स फोरियर जब हम लेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा ht it is known as impulse response of the system. So now we are first going to study what is linearity and what is time invariance. In linearity there are two laws. First law is law of superposition and second law is law of additivity. So what is law of superposition and what is law of additivity? Both the laws are represented diagrammatically in this block. Consider an input xt. Okay, so first we are going to pass through a system and the output that we are getting is yt. See, after getting yt we pass through a block k which multiplies it with a constant and the output that we are getting is k into yt. This is the final output. Now instead of passing through the system first, now we are first passes through the constant k. On passing through a constant k block, the output that we are getting is k into xt, and when we pass through a system, the output that we are getting, let us assume it is y dash t. In case these two outputs are equal to each other, then we can say that the system is linear in nature, or the output we are getting is linear with the input. Okay, so and now the second is what is time invariance. The definition of time invariance suggests that defined as any delay or any advancement in the input must be reflected in the output. So how we can say that? We can see it diagrammatically. जैसे कि हमने एक xt इनपुट लिया. अब मान लीजिए कि हमने इसे पहले सिस्टम से पास किया और जो हमें आउटपुट आ रहा है वो है yt. ठीक है, अब हमने एक इसमें डिले प्रोड्यूस करा. हमें पता है डिले कैसे प्रोड्यूस करते हैं. वाई टी प्लस टी नॉट उसका एडवांसमेंट होता है और वाई टी माइनस टी नॉट उसमें डिले प्रोड्यूस करना होता है. तो डिले प्रोड्यूस किया हमने मान लीजिए टी नॉट टाइम का, तो आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो है वाई टी माइनस टी नॉट. ओके, नाउ पहले हम डिले प्रोड्यूस करते हैं. तो आफ्टर डूइंग अ डिले ऑफ इन एक्स टी विच इज द इनपुट, द आउटपुट इज एक्स टी माइनस टी. Now this input is passes through the system and the output that we are getting is y dash t. So in case both the final outputs are equal, then we can suggest that the system is time invariant in nature. So हम ये देख सकते हैं कि कोई भी डिले अगर हम इनपुट में दे रहे हैं तो अगर उसका रिफ्लेक्शन उसके आउटपुट में आ तो इसका मतलब है कि वो टाइम इनवेरिएंट है और ऐसी लीनियर में लीनियरली चेंज कर रहा है. अगर हमारा इनपुट और आउटपुट इनपुट के थ्रू, तो उसे कहते हैं हम लीनियर. ठीक है, तो अब आता है कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल. तो कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का यूज क्या है? पहली चीज तो फर्स्ट पॉइंट इज कि why convolution integral is used. Convolution integral
is used to obtain the output from the input and the system impulse response. अभी हमने system impulse response देखा था HT, जो ब्लॉक का impulse response होता है. अगर हम उसे XT से convolve कर देंगे, हम अभी देखेंगे what is convolution. अगर this is the representation of convolution, तो अगर हम xt से इसे कॉन्वॉल्व कर देंगे तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो होगा yt. ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट हम मांग रहे हैं. सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, दीज आर द लिमिट्स, x tau into ht minus tau d tau. Okay, so this is the way to calculate convolution integral, but we can see that integration in time domain is very complicated in nature, क्योंकि इसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम हुई. अभी अगर कोई दो बेसिक सिग्नल्स ले लिए लाइक ut ले लिया, तो उसमें भी 3 to 4 steps are minimum required. So in case of doing in time domain, we prefer to do it in frequency domain, like, and this helps, this is done through Laplace transform. Okay, तो xt जो हमारा टाइम डोमेन में इनपुट है उसका हमने लाप्लास ले लिया xx. ठीक है, और ht उसका लाप्लास ले लिया hs. दिस विल गोइंग टू बी द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, एंड जो हमारा आउटपुट आएगा ys, it will come. So in Laplace transform, the convolution integral is converted into the multiplication of the two hs and xs. So the output ys is equals to hs into xs. So we can see that कितना आसान हो गया है ये चीज हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में करने में. ठीक है, तो this is the way how to calculate the convolution integral or to find the output. And if we want it in time domain, we can take its inverse Laplace and we can see the yt. Okay, so these are the properties of convolution. Okay, so first is commutative, associative. ये तो बिल्कुल ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और जितने भी हमने जहाँ पे भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव पढ़े सारे सिमिलर ही होते हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, सारा कॉन्सेप्ट सेम है, बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए किसी भी टॉपिक में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 90% या कह सकते हैं 50% कॉन्सेप्ट्स इन्हीं बेसिक सब्जेक्ट से इवॉल्व होते हैं, लाइक सिग्नल सिस्टम्स एंड नेटवर्क थ्योरी. ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 90% और वी कैन से 80% इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चलाती है. ठीक है, अगर इन दोनों पे अच्छा ग्रास्प है तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ट्रांसफर पावर सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी इजी हो जाते हैं. तो कम्यूटेटिव ये हो गया, एसोसिएटिव ये हो गया. डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन क्या है, xt को अगर हम कॉन्वॉल्व करेंगे h1t प्लस h2t से, दिस इज प्लस, so the output will be which is equals to xt convolution h1t plus xt convolution h2t. Now the fourth property is important one. This is known as the identity elimination element of the convolution. So what is this? xt convolution ht is equals to ht. तो अब हमें पता लगाना है कि ये xt होता क्या है, ये कौन सी ऐसी चीज है, ये कौन सा ऐसा प्राणी है जो xt convolution ht को ht ही देता है. So in next slide we are going to see that see what is xt. So by going through the proof we can find that xt is impulse function ht. The proof is we know that the yt is equals to the output होता है convolution integral से होता है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x tau ht minus tau d tau. So in place of x tau we use impulse function del tau. So del tau ht minus tau d tau, which gives in impulse function there is one property, so which is when an impulse function is multiplied with an x, there is h tau t minus 1 del t minus t1 into xt. So we can put t1 into xt and make it independent of time, and we can take outside common. So here we are doing the same thing. As the shifting parameter is 0 in impulse function, so we have put 0 here.
वी हैव टेकन आउटसाइड बिकॉज अब ये तो इंडिपेंडेंट हो गया टाउ के फंक्शन से, तो इंटीग्रेशन के अंदर तो इसे रखने की जरूरत ही नहीं है। तो जो हमारा ht हो गया वो बाहर आ गया। अब हमें पता है कि इम्पल्स फंक्शन का एरिया ओवर द टाइम पीरियड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होता है 1, दिस इज इक्वल्स टू 1, so this becomes 1 and the answer will be ht. Okay, so now we should know what is impulse response. तो अभी तक हमने देखा था कि जो LTI सिस्टम है हमारा, उसमें हम अगर xt इनपुट देते हैं और yt आउटपुट लेते हैं, तो अगर in place of xt we are going with del t which is impulse function, and the output that we are getting through giving input as a del t or impulse function is known as impulse response which is ht. So for एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसे कि क्या होता है ये। अब yt जो है वो हो गया xt plus 2 माइनस xt माइनस 2। तो भाई अब इसका लाप्लास निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लाप्लास के फॉर्मूले याद होने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना उसके तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो x del t माइनस 2 का लाप्लास, del t का पहले लाप्लास पता होना चाहिए, वो होता है 1, ठीक है। del t माइनस 2 का लाप्लास क्या होगा, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से 1 इंटू ई की पावर माइनस 2s, और del t प्लस 2 का e की पावर प्लस 2s, ठीक है। जो साइन यहाँ है वहीं यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। सो पुटिंग इन दिस ys is equals to xs into e की पावर 2s माइनस xs e की पावर माइनस 2s। अब हमने ये दोनों कॉमन ले लिया, सो ys अपॉन xs is equals to e की पावर 2s माइनस e की पावर माइनस 2s, दिस कम्स आर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब उसका हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसका हम इन्वर्स लाप्लास ले लेते हैं। तो ये चीज हमें देख रहे हैं कि del t प्लस 2 आ गई इन फॉर्मूलेस को यूज करके, और माइनस del t माइनस 2, तो दिस इज आवर आंसर। नाउ कम्स द प्रॉपर्टीज। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये, प्रॉपर्टीज ऑफ LTI सिस्टम। memoryless, the condition for a LTI system to be memoryless or static is ht is equals to k del t, क्योंकि मेमोरीलेस और स्टैटिक का रीजन क्या होता है कि वो केवल प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करना चाहिए और किसी पे भी डिपेंड नहीं करना चाहिए कि लाइक पास्ट और फ्यूचर। फॉर कॉजुअलिटी द आउटपुट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट, ठीक है। तो अब हम कॉन्वोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है yt माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt माइनस टाउ h टाउ डी टाउ, ठीक है। अब xt माइनस टाउ इनपुट है, और अगर हमें इसे फ्यूचर इनपुट बनाना है तो हम टाउ को रखेंगे लेस देन 0। टाउ को हमने जैसे ही लेस देन 0 रखा, ये हो गया फ्यूचर इनपुट। अब अगर हम मान रहे हैं कि yt हमारा कॉजल है, तो वो तो होना चाहिए 0 फॉर फ्यूचर इनपुट्स, बट इनपुट हमारा 0 नहीं है, तो व्हाट इज द कंडीशन, तो ht हमारा होना चाहिए 0 इन दैट केस फॉर t लेस देन 0। दिस इज फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम एंड दिस इज फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। नाउ कम्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए फंक्शन को, सो ht का मॉड minus infinity to infinity dt should be less than infinity. This term represents that it is absolutely integrable. So invertibility ये हो गया ht convolution hit is equals to del t, ठीक है। ये हो गई कंडीशन फॉर इन्वर्टिबिलिटी। सो एक क्वेश्चन देखते हैं हम जो अभी तक पढ़ा है, इम्पल्स रिस्पॉन्स और इनपुट आउटपुट का रिलेशन होता है, क्या होता है। तो एक ये गेट 2013 का क्वेश्चन है, 1 marks. The impulse response of the system is ht is equals to tut. अब tut को देख के पता लगना चाहिए कि ये है क्या, ये एक रैंप फंक्शन है, ठीक है, और इसका लाप्लास होना चाहिए 1 by s स्क्वायर। एंड फॉर द इनपुट ut माइनस 1 क्या हो गया, ut माइनस 1 हो गया, इसका लाप्लास हो गया 1 by s e की पावर माइनस इंटू e की पावर माइनस s। तो इससे हम देख सकते हैं कुछ आउटपुट, या तो आउटपुट मिलेगा कॉन्वोल्यूशन के थ्रू, बट कॉन्वोल्यूशन करना, इंटीग्रेशन करना बहुत टफ है, इसलिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को प्रेफर करते हैं इन केस में। तो hs इज इक्वल्स टू 1 by s स्क्वायर एंड ys अपॉन us इज इक्वल्स टू 1 by s स्क्वायर।
सो यूएस का लाप्लास हो गया e की पावर माइनस एस अपॉन एस, उसे हमने मल्टीप्लाई किया तो वाई एस इज इक्वल टू 1 बाय एस स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस एस बाय एस। और जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है वो आया है वाई टी इज इक्वल टू टी माइनस 1